السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے مرکز کی BJP حکومت پر لگایا الزام کہ وہ آئندہ انتخابات کے پیش نظر عوام میں نہرو گاندھی خاندان کی چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی۔ پرانے شہر سمیت حیدرآباد و سکندرآباد کے کئی علاقوں میں گزشتہ رات اور صبح کی اولین ساعتوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ملک کے دفاعی منصوبہ اگنی پتھ پر جاری برہمی کے دوران اس اسکیم کے تحت بھرتی کیے جانے والوں کو ڈرائیورز، الیکٹریشین، دھوبی، نائی اور دیگر پیشوں کی مہارت کی تربیت دینے کے سلسلے میں مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کے ریمارک سے تنازع کھڑا۔ انہوں نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا تھا، جس کے بعد KTN نے اس پر برہمی کا کیا اظہار۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی MP نے کہا، فوج کی مستقبل میں نجکاری کے مقصد سے ہی اگنی پتھ اسکیم مرکزی حکومت نے متعارف کروائی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری تعلیمی سال سے ریاست کے سرکاری اسکول میں اول تا ہشتم انگریزی میڈیم متعارف کرایا، جس پر عوام سے کافی حوصلہ افزا عمل مل رہا۔ ان سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلہ دلانے کے لیے والدین کی قطاریں دیکھی گئی۔ جاری سال ریاست تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں میں اول تا 10 جماعت میں 18 جون تک جملہ 1,22,956 بچوں کا داخلہ۔ سابق صدر PCC و رکن راجیہ سبھا وی ہنمنتراؤ نے فوج میں 4 سال کی ملازمت کے بعد اگنی ویروں کو BJP کے دفتر میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت دینے کا پیشکش کرنے والے BJP کے قومی جنرل سیکرٹری کیلاش وجے ورگیہ کے خلاف بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد آمد و رفت کرنے والوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولت فراہم کرنے کی کوشش میں GHMC کی جانب سے شہر میں 24 پشپک بس شیلٹرز تعمیر کیے جا رہے۔ ریچھ کے حملے میں ایک ضعیف شخص ہلاک۔ یہ واقعہ ضلع سریکاکولم کے کڈی سنگی گاؤں میں پیش آیا۔ خانہ پور میں کل جماعتی مسلم JAC اور MDC کے زیر اہتمام علماء اور مسلم قائدین مسلم نوجوانوں کی کثیر تعداد نے دفتر تحصیل خانہ پور میں احتجاج منظم کرتے ہوئے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم BJP کی سابقہ قومی ترجمان نپور شرما اور نوین جندال کی فوری گرفتاری کا کیا مطالبہ۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے مرکز کی BJP حکومت پر الزام لگایا کہ وہ آئندہ انتخابات کے پیش نظر عوام میں نہرو گاندھی خاندان کی چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی۔ کانگریس کی ریتو رچا بنڈا پروگرام کے دوران کاماریڈی ضلع کے راماریڈی منڈل کے ریڈی پیٹ میں سنگرالا پلی گدمبا تھانڈا اسکول میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے
करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने ये बात बताई। शब्बीर अली ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 8 सालों में अवाम से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं कर सके। महंगाई और बेरोजगारी अपने उरूज पर है और बीजेपी हुकूमत के पास आम लोगों को रिलीफ देने का कोई हल नहीं है। पुराने शहर समेत हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई। शेखपेट, गोलकुंडा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, कोंडापुर, रायदुर्ग, खैरताबाद, बोइनपल्ली, बेगमपेट, पैराडाइज, कुकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, खैरताबाद और दीगर इलाकों में ये बारिश हुई। माधापुर, गच्चीबौली, इर्रागड्डा, सोमाजीगुड़ा, बोइनपल्ली, अलवाल, मैरटपल्ली, तिरमलगिरी, चारमीनार, चंद्रायनगुट्टा, फलकनुमा, बारकस, याकुतपुरा, बहादुरपुरा के इलाके में भी बारिश हुई है और नरेडमेट में मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। निसफ शब के बाद अचानक शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने से लोग परेशान हो गए। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मंगल की सुबह भी कई मुकामात पर बारिश हुई। कुकटपल्ली में 6 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। मुल्क के दिफाई मंसूबा अग्निपथ पर जारी बरहमी के दौरान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के रिमार्क से तनाज़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था। ट्विटर पर मरकजी वजीर सयाहत के बयान को टैग करते हुए रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इस बयान को सदमे से ताबीर किया। ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने पूछा कि क्या अग्निपथ स्कीम का ऐलान श्रीलंका में मोदी अडानी की रिश्वतखोरी के गठजोड़ के इल्जामात पर से तवज्जो हटाने के लिए ही ऐलान किया गया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए एनडीए को तंजिया अंदाज में एनपीए करार देते हुए कहा है कि एनपीए के एक काबीनी वजीर का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के नतीजे में नौजवानों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, नाई और धोबी के तौर पर मुलाजिमत दी जाएगी। एक और बीजेपी के ताबनाक लीडर का कहना है कि वो अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर मुलाजिमत देंगे और आप कह रहे हैं कि नौजवानों ने मोदी जी को नहीं समझा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी एमपी ने कहा है कि फौज की मुस्तकबिल में निजकारी के मकसद से ही अग्निपथ स्कीम मरकजी हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस स्कीम को मनसूख करने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के अगले सेशन के दौरान भी इस मसले पर जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिरासानी की सियासत के हिस्से के तौर पर ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुकदमात का सामना कर रहे। उन्होंने कहा है कि चाहे कितने ही मुकदमात दर्ज किए जाएं, कांग्रेस लीडरान खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एक ऐसे वक्त जब वालिदैन खानगी मदारिस में बच्चों के दाखिले की भारी फीस से फिक्रमंद और परेशान हैं, इन अय्याम में तेलंगाना में एक ऐसा भी सरकारी स्कूल है जहां बच्चों को दाखिला कराने के लिए वालिदैन को 5,000 रुपए का पेशकश किया जा रहा। रियासत के जिले मेडचल मलकाजगिरी के गोधो माकुंटा के अवामी नुमाइंदों ने मुकामी मंडल परिषद एलिमेंट्री स्कूल में दाखिले की हौसला अफजाई के लिए ये एक अनोखा व इख्तराई आइडिया पेश किया है। सरपंच महेंद्र रेड्डी और नायब सरपंच अंजनेलू ने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से मुतल्लिक वालिदैन को तरगीब देने के लिए अनोखी पहल है। अवामी नुमाइंदों ने स्कूल के गेट पर एक फ्लेक्सी भी आवेजा किया है जिस पर इस पेशकश का ऐलान किया है। इस फ्लेक्सी पर स्कूल की अहम खसूसियात और यहाँ तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर भी रोशनी डाली गई। अतिया दहिंदगान के ताउन से स्कूल इंतजामिया ने अव्वल ता हफ्तम जमात में ज़ेर तालीम तलबा को तमाम सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई। स्कूल की जानिब से हर बच्चे को यूनिफॉर्म्स के 2 जोड़ जूते, मोजे, किताबें, बैग और बस पास भी मुफ्त फराहम किया जा रहा। सरकारी स्कीम मिड डे मील के तहत तलबा के लिए दोपहर के खाने की सहूलत भी दस्तियाब है। इदारे जात मुकामी ने स्कूल के अहाते में सब्जा को फरोग देने और इमारत की आहक पाशी का तयखुन दिया है।
साबिक सदर पीसीसी व रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने फौज में 4 साल की मुलाजिमत के बाद अग्निवीरों को बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजिमत देने का पेशकश करने वाले बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। कबल अज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वी हनुमंतराव ने कहा कि बीजेपी कायद विजय वर्गीय ने फौज में खिदमत अंजाम देने वाले अग्निवीरों की तौहीन की है। उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस बेगम बाजार से बीजेपी कायद के खिलाफ फौजी जवानों की तौहीन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में नौजवानों का एहतजाज जारी है। इन हालात में नौजवानों की तौहीन करना आग पर तेल छिड़कने के बराबर है। अग्निपथ स्कीम को वापस न लेने से मुतल्लिक फौज के सरबराह के बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए वी हनुमंतराव ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि फौजी सरबराह मुल्क के नौजवानों को मजीद वरगला रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि अग्निपथ स्कीम पर पार्लियामेंट में बहस की गई और न ही अपोजिशन जमातों से मशावरत की गई। इस स्कीम को मुतारिफ करवाने का मकसद कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद आमद व रफ्त करने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत फराहम करने की कोशिश में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में 24 पुष्पक बस शेल्टर्स तामीर किए जा रहे। पुष्पक बस शेल्टर्स में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सहूलतें, लाइट्स, फैंस, कचरेदानों के अलावा दीगर जरूरी सहूलतें होंगी। कॉरपोरेशन के अहदेदारों के मुताबिक बस शेल्टर्स 24 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े साइज के होंगे। वाज़ेह है कि साइंचेस भी फराहम किए जाएंगे। इसमें ख्वातीन और माजूर अशखास के बैठने के लिए खसूसी जगह होगी। शेल्टर्स पर रूट्स, शेड्यूल और किरायों से मुतालिक अपडेट इंफॉर्मेशन भी फराहम की जाएंगी। ये शेल्टर्स एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें एक डोर और कुंजी से अच्छी तरह महफूज रखा जाएगा। शेल्टर की एक कुंजी TSRTC के हवाले की जाएगी। GHMC इस प्रोजेक्ट की DBFOT असास पर तामीर, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए खानगी एजेंसीज की खिदमात से तकरीबन 10 साल मुद्दत के लिए इस्तेफादा करेगा। ये बस शेल्टर्स नागुल, एक्स रोड, पिटनी, राजगंज, लकड़ी का पुल, AC गार्ड्स के करीब, NMDC के पास 2, मेहदीपट्टनम में 2, आरामगढ़ पर 2, पैराडाइज में, यात्री निवास, बेगमपेट, निम्स पंजाकुट्टा, केयर हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स, निजामपेट चौराहा, कुकटपल्ली में, फोरम मॉल, मलेशियन टाउनशिप, श्रीलिंगमपल्ली में, बायोडाइवर्सिटी, गच्चीबौली, आउटर रिंग रोड पर 2, मदीनागुड़ा, कोंडापुर, रेडिसन होटल, कोत्तागुड़ा क्रॉस रोड पर होंगे।
रीछ के हमले में एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। ये वाक़या जिले श्रीकाकुलम के कड्डीसंगी गांव में पेश आया। महलूक की शनाख्त 72 साला कोंडाराव के तौर पर की गई है। वो अपने खेत की सिमत जा रहा था कि अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। ये रीछ झाड़ियों में छुपा बैठा था। इस हमले में कोंडाराव हलाक हो गया। मालूम हुआ है कि जंगली जानवर के हमले में दीगर 7 अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वहां पहुंच गए। खानापुर में कुल जमाती मुस्लिम जेएसी और एमडीसी के ज़रिए एहतमाम उलमा और मुस्लिम कायदीन मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद ने दफ्तर तहसील खानापुर में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीजेपी की साबिक़ा कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। खानापुर के मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद शाहिद अली मुज़ाहरी, नायब नाजिम मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया खानापुर व कन्वेनर जमीयतुल उलमा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि फौरी इन दोनों गुस्ताखों को गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की गुस्ताखाना हरकत की जुर्रत न कर सके। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 196 करोड़ 32 लाख 43,003 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 लाख 24 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 9,923 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4 करोड़ 33 लाख 18,696 हो गई। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 2.55% हो गई। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 7,293 लोग कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक कुल 4 करोड़ 27 लाख 15,193 मरीज कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.61% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,88,641 कोविड टेस्ट किए गए हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address: बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम कि वो आइंदा इंतखाबात के पेश नजर अवाम में नेहरू गांधी खानदान की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही। पुराने शहर समेत हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात और सुबह की अवलिन सातों में मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क के दिफाई मंसूबा अग्निपथ पर जारी बरहमी के दौरान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी के रिमार्क से तनाज़ा खड़ा। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था, जिसके बाद केटीआर ने इस पर बरहमी का किया इजहार। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी एमपी ने कहा, फौज की मुस्तकबिल में निजकारी के मकसद से ही अग्निपथ स्कीम मरकजी हुकूमत ने मुतारिफ करवाई।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी तालीमी साल से रियासत के सरकारी स्कूल में अवलता हश्तुम अंग्रेजी मीडियम मुतारिफ कराया, जिस पर आवाम से काफी हौसला अफजा अमल मिल रहा। इन सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिला दिलाने के लिए वालिदैन की कतारें देखी गई। जारी साल रियासत तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में अवलता दहम जमात में 18 जून तक जुमला 1,22,956 बच्चों का दाखिला। साबिक सदर PCC व रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने फौज में 4 साल की मुलाजिमत के बाद अग्निवीरों को बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजिमत देने का पेशकश करने वाले बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद आमद व रफ्त करने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत फराहम करने की कोशिश में GHMC की जानिब से शहर में 24 पुष्पक बस शेल्टर्स तामीर किए जा रहे। रीछ के हमले में एक ज़ईफ शख्स हलाक। ये वाक़या जिले श्रीकाकुलम के कड्डीसंगी गांव में पेश आया। खानापुर में कुल जमाती मुस्लिम JAC और MDC के ज़र एहतमाम उलमा और मुस्लिम कायदीन मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद ने दफ्तर तहसील खानापुर में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीजेपी की साबिक़ा कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।